Hello students, my name is Gargi and in this video lecture we are going to start our chapter A Letter to God. So in this chapter there is this farmer named Lencho and he has this field of corns and it's very important to him obviously. To a farmer his land is everything. So he has this crop and it's ready to harvest, but suddenly something happens and his crops get destroyed. Now अब उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उसका जो the only source of livelihood he had, now it's now gone. So he is very upset, he is very tense कि अब वो आगे क्या करेगा. So the only hope he has now is help from God. So he writes a letter to God and asks the God for help. Now the question is, क्या God ने उसके लेटर का रिप्लाई किया, क्या God ने उसकी हेल्प की? So all this we'll study in this chapter. So let's start. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. So Lencho's house is on a crest of a low hill. Crest is what? Top of a hill. So it's on the top of a low hill and you can see all the crops and everything dotted with flowers and it's looking very beautiful. That promised a good harvest, and his field, it always gave him a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब अर्थ को एक ही चीज चाहिए थी, वो थी एक अच्छी सी बारिश हो जाए ताकि जो क्रॉप है उनको अच्छा सा पानी मिल जाए. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now Lencho is waiting for the rain to come and he is looking in the direction, वो northeast direction में देख रहा है. क्यों? क्योंकि he is waiting for the rain to come. वो वेट कर रहा है कि अच्छी सी बारिश हो जाए तो उसको जो एक चीज चाहिए उसकी फील्ड्स को वो उसे मिल जाएगी. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, "Come for dinner." It was during the meal, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. Now the family, the older boys are working in the field. जो बड़े उसके बेटे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के आसपास खेल रहे हैं. एंड एट डिनर टाइम, एट सपर टाइम, उनकी जो मदर है उनको बुला लेती हैं खाना खाने के लिए. और जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि लेंचो ने सोचा था बारिश आएगी, वैसे ही शाम के रात के टाइम पे बारिश आनी शुरू हो जाती है. इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and little ones are 5s." Now, जैसे ही उसे पता चलता है कि बारिश आ गई, he is really happy कि जो उसको एक चीज़ चाहिए थी वो उसे मिल गई है. So he is really excited and he goes out in the field just to feel that rain on his body. वो जो बारिश की जो बूंदें हैं उनको अपनी बॉडी पे फील करना चाहता है, वो उस मौसम को एंजॉय करना चाहता है. एंड ही गोज आउट, ही फील्स दैट, और वो अंदर आके सबको बताता है कि ये जो आसमान से गिर रही है ना, ये पानी की बूंदें नहीं है, ये क्या है, ये कॉइन्स हैं. बिकॉज ऑफ दैट रेन क्या होगा, उसकी फील्ड में जो क्रॉप है वो अच्छी होगी और अगर वो क्रॉप अच्छी होगी तो उसको पैसा अच्छा मिलेगा. सो टू हिम दोज रेन ड्रॉप्स आर व्हाट, आर लाइक मनी. सो ही इज सेइंग दैट बिग ड्रॉप्स आर 10-cent पीसेस. बिग ड्रॉप्स जो है रेन की वो तो कैसी है, 10-cent पीसेस है, एंड द लिटिल वंस आर 5s. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. Now he is very satisfied with everything, with the weather, with the conditions, and he calls the fields of ripe corn
with its flowers draped in a curtain of rain. उसकी जो फील्ड है उसको वो कैसा बताता है कि वो एक कर्टन में ड्रेप्ड है, एक कर्टन में लिपटी हुई है, किसके, रेन के कर्टन में. दैट मीन्स बारिश के कर्टन में कैसे वो उसकी फील्ड जो है वो लिपटी हुई है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अभी तक मौसम अच्छा था, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बट सडनली बहुत तेज हवा चलने लगती है और उस हवा के साथ हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं. हेल स्टोन्स आर व्हाट, ओले गिरने लगते हैं. एंड दे एक्चुअली लुक्ड लाइक सिल्वर्स. वो कैसे लग रहे थे, सिल्वर, जैसे सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हो आसमान से, बिकॉज हेल स्टोन्स आर दे आर वाइट. सो जैसे ही वो आसमान से गिर रहे थे वो कैसे लग रहे थे, सिल्वर की तरह लग रहे थे. एंड द बॉयज एंड फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन, वो जो आसमान से हिल स्टोन्स गिर रहे थे वो कुछ नया लगा उनको, कुछ अच्छा लगा, तो पर्ल्स की तरह लग रहे थे. तो दे स्टार्टेड रनिंग एंड एक्सपोजिंग देमसेल्व्स. उनको ये भी चिंता नहीं थी कि हमको ये लग जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो जाके उनको कलेक्ट करने लगते हैं एक्साइटमेंट में. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन. आई होप इट पासेस क्विकली. नाउ द मैन इज वरीड दैट हेल स्टोन्स है वो क्रॉप को खराब कर देगा. तो ही इज वरीड कि अगर जल्दी से जल्दी ये बंद नहीं हुआ तो उसकी क्रॉप क्या होगी, खराब हो जाएगी. सो ही इज वरीड नाउ एंड ही इज होपिंग दैट इट पासेस क्विकली, कि ये जल्दी से जल्दी क्या हो, खत्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली बट इट डिड नॉट. वो जो रुकना था वो नहीं रुकी. वो जैसा होप कर रहा था कि वो हेल स्टोन्स जल्दी रुक जाएं गिरना, बट वो नहीं हुआ. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Around 1 घंटे तक वो hailstones गिरते रहे और उसने पूरी वैली को कवर कर दिया था. हर जगह hailstones, ऐसा लग रहा था एक लेयर बन गई hailstones की, ऐसा लग रहा था वहाँ पे सॉल्ट से कवर कर दिया हो सब जगह को किसी ने. Now not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing." Now he is very upset. जैसे ही स्टॉर्म रुका, उसने बाहर जाके देखा तो पेड़ पे एक पत्ता भी नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था. एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड. सब कुछ खत्म हो गया था. उसकी क्रॉप, एक एक क्रॉप जो थी उसकी, एक एक प्लांट जो था वो सब कुछ खराब हो चुका था. एंड देन ही सेड टू हिज सन्स दैट अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. लोकस्ट इज काइंड ऑफ इंसेक्ट जो कि क्रॉप्स पे अगर आ जाते हैं, दे ट्रैवल इन अ ग्रुप, और अगर वो किसी भी फील्ड पे आकर रुक जाते हैं तो दे डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली. लाइक वो पूरी क्रॉप को इस तरीके से खा लेते हैं कि कुछ नहीं बचता है. तो वो कहते हैं कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट आता तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता, कुछ ना कुछ तो छोड़ कर ही जाता. बट इस स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है. लाइक नॉट इवन अ सिंगल प्लांट. सब कुछ खत्म हो चुका है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और इसी वजह से हमारे पास इस साल कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए, कोई कॉर्न नहीं होगा. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single help from God. एक होप थी. सब बहुत सैड थे, सब होपलेस हो रहे थे बहुत ज़्यादा कि अब हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है. बट एक होप थी उनके पास, विच वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब सिर्फ और सिर्फ गॉड ही हमारी हेल्प कर सकते हैं. उनके अलावा ऐसा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में जो हमारी हेल्प कर सके. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. सो दे आर कंसोलिंग ईच अदर कि भूख से तो कोई नहीं मरता है, ऐसा बोला जाता है बट ऐसा नहीं होता है. विल फिगर समथिंग आउट, कुछ ना कुछ हो जाएगा. All through the night Lencho thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed,
see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. So, as we all have been instructed before, जब हम लोग भी छोटे होते तो हमसे भी ये कहा जाता है कि भगवान सब देखता है, भगवान को सब पता है, he knows everything. So, लेंचो को भी बचपन से यही बोला गया था कि भगवान को सब पता है, भगवान सब देखता है. So, that's what he knew. उसे भी यही मालूम था, वो भी यही समझता था. So, according to him, गॉड ने ये सब भी देखा था और उनको पता था कि लेंचो कितना परेशान है, उसको कितनी ज़रूरत है अभी हेल्प की. सो लेंचो वॉज ऑक्स ऑफ अ मैन, दैट मीन्स ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑल ही डिड वॉज वर्क इन द फील्ड ऑल डे, बट ही न्यू हाउ टू राइट. फिर भी उसको लिखना आता था. ही वॉज एजुकेटेड, तो उसको पता था कि लिखना तो आता ही था. सो दिस The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. So he decided to write a letter to God. उसने पेन पेपर लिया, लेटर लिखा गॉड को, and he decided कि वो the following Sunday daybreak पे जाके और वो जो लेटर है वो मेल में डाल देगा. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. So he writes all his problems कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए. और he wrote all his problems क्योंकि hailstorm आया था. उसने सारी चीज़ें सब कुछ मेंशन कर दिया उसमें. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो उसने ऊपर to God लिखा, लेटर को envelope में डाला and मेल कर दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. So now there was this employee and he got this letter addressed to God. So he started laughing और वो अपने बॉस के पास गया and he told him that कि ये जो लेटर आया है to addressed to God, तो मैं इसको कहाँ पहुँचाऊँ, क्योंकि मैंने तो आज तक ये कभी ऐसा ये एड्रेस नहीं देखा है कि मैं ऐसा कोई लेटर मेरे पास आया हो कि टू गॉड और मैं कहीं जाके उसको दे दूँ. तो मैं कहाँ जाके इसको, इस लेटर को मैं कहाँ पहुँचाऊँ. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो. नाउ the postmaster, who was a fat amiable means he was very friendly looking and very sweet kind of a person, also broke out laughing. So he also started laughing वो letter देखते ही कि to God को कौन letter लिखता है. like, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." So at first he started laughing, कि अरे God को कौन letter लिखता है ऐसा. But suddenly he thought of something and he became very serious. And he said कि what a faith this man has, कि इस इंसान में कितना ज़्यादा faith है God को लेके. इसने लेटर लिखा है God को और इसको इतना faith है कि लेटर God तक पहुँचेगा और God इसकी एक्चुअल में हेल्प करेंगे. कि I wish I had this kind of faith. मुझ में ऐसा फेथ होता कि मैं गॉड को लेटर लिख सकता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. तो अब उसने सोचा कि इस इंसान में इतना ज़्यादा फेथ है, ही इज सो इनोसेंट एंड ही इज सो नाइस, कि अभी मैं इसका फेथ शेक नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं इसका फेथ टूटने नहीं दूंगा. सो वॉट आई विल डू इज आई विल आंसर द लेटर एंड आई विल आंसर द लेटर एज गॉड. मैं गॉड बन के इसके जो लेटर है उसका रिप्लाई करूंगा. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. सो वेन ही सॉ द लेटर, ऊपर से जब उसने एनवेलप देखा तब ही डिसाइडेड कि वो लेटर का रिप्लाई करेगा. बट वेन ही ओपन दैट लेटर
जब उसने उसको पढ़ा तब ही रियलाइज्ड कि इसको गुडविल नहीं चाहिए मेरी इंक और पेपर से कहीं ज़्यादा मुझे कुछ लगेगा इसका लेटर का रिप्लाई करने में, क्योंकि उसको अच्छा ही थोड़ी चाहिए लेंचो को क्या चाहिए, लेंचो को पैसे चाहिए टू सर्वाइव, लाइक ही नीड्स मनी चाहिए उसको गुडविल चाहिए नहीं चाहिए, उसको सिंपैथी नहीं चाहिए किसी की, उसको क्या चाहिए, उसको पैसे चाहिए. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So he started collecting money. He asked for his employees to contribute. He himself gave some money. कुछ पार्ट उसने अपने सैलरी का दिया, कुछ अपने फ्रेंड्स से बोला कि यार इट्स फॉर चैरिटी के लिए तो तुम दे ही सकते हो, और चैरिटी के नाम पे तो सभी लोग पैसे दे देते हैं, तो उसने बोला कि हाँ चलो चैरिटी के नाम पे तो तुम पैसे दे ही सकते हो, तो चैरिटी बोलकर उसने अपने फ्रेंड्स से भी पैसे लिए, तो उसने सबसे थोड़ा पैसा लेके एक अमाउंट इकट्ठा कर लिया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो 100 पेसोस तो वो नहीं कलेक्ट कर पाया, बिकॉज इतना अमाउंट अभी एक पोस्ट मास्टर के लिए कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इतना पैसा तो कलेक्ट नहीं कर पाया, बट ही वॉज एबल टू कलेक्ट मोर देन हाफ से थोड़ा सा ज्यादा वो कलेक्ट करने में ही वॉज सक्सेसफुल. Put out the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. So उसने एनवेलप में पैसे डाले, उसने ज्यादा कुछ नहीं लिखा उसमें, ही जस्ट रोट गॉड, मतलब एक साइन कर दिया उसने गॉड, ताकि उसे पता चल जाए गॉड की तरफ से, और उसने ज्यादा कुछ नहीं लिखा. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. So next Sunday, Lencho थोड़ा सा जल्दी आ जाता है पोस्ट ऑफिस, क्योंकि he is expecting letter, उसका रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा है वो. So he comes a bit earlier, and that postman जो था, जिससे वो लेटर मिला था, उसी ने वो लेंचो को लेटर दे दिया, जो रिप्लाई में एज रिप्लाई जो पोस्ट मास्टर ने लिखा था. एंड द पोस्ट मास्टर जो ही वॉज फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने एक अच्छा काम किया है, और वो विंडो से अपनी देख रहा था वहाँ पे खड़ा होके कि लेंचो को जब पैसे मिलेंगे तो वो कैसा रिएक्शन देगा, वो सारी चीज़ें वो देखने के लिए ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ही वॉज फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, तो वो वहाँ खड़ा होके देख रहा था. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. So Lencho was not surprised at all, क्योंकि उसको पता था. He was expecting that letter कि हाँ गॉड को मैंने लेटर लिखा है, वो रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, वो पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, तो उसको सरप्राइजिंग फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी. But when he counted the money, he became angry. उसको गुस्सा आ गया कि अरे ये क्या है, उसने मनी काउंट किया और he became angry. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. कि गॉड से गलती तो नहीं हो सकती, भगवान से गलती हो ही नहीं सकती है अकॉर्डिंग टू लेंचो, कि भाई भगवान से गलती तो नहीं हो सकती है, एंड वो उसने जो मांगा है वो उसको मना भी नहीं कर सकते हैं, दोनों केस है, तो फिर ये पैसे कम कैसे. उसको गुस्सा ये आ रहा था ये सोच के कि गॉड ना तो गलती कर सकते हैं, ना वो उसको कुछ मना कर सकते हैं जो उसने मांगा है वो देने से. ठीक है. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. So he was angry. अपना सारा गुस्सा लेके वो विंडो पे गया, उसने पेन और इंक मांगा, एंड विद रिंकलिंग ऑन हिज ब्राउज बिकॉज ऑफ द एंगर ही वाज हैविंग, बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो, एंड ही स्टार्टेड राइटिंग. और जब वो लिख रहा था तो दिख रहा था उसके फेस पे को जितना गुस्सा है ना वो सब पेन अपने पेपर पे उतार देना चाहता है. एंड देन ही बॉट दिस स्टैम्प. ठीक है. ही लिक्ड इट एंड ही affixed it with his fist, and then
The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. और जब जैसे उसने मेल किया वो तो, और मेल करके वो तो चला गया, जैसे ही वो वहां से गया पोस्टमास्टर भागा भागा गया and he took that letter out. It said, now उसने लेंचो ने गुस्से में क्या लिखा था लेटर में, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. God, जितना मनी मैंने आपसे मांगा था उसमें से सिर्फ मेरे पास 70 pesos ही पहुंचा है. Send me the rest since I need it very much. कि मुझे बाकी का भी भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो कि आप भेज तो देना बट वो मुझे मेल के थ्रू मत भेजना. क्यों? क्योंकि these post office employees are bunch of crooks, like they are criminals. That means Lencho thought that the money that was less, जो 70 pesos में जो कम पैसा था वो जो employees हैं उन्होंने चुरा लिया है. So लेंचो इज थिंकिंग कि वो जो पैसा है वो एक्चुअल में गॉड ने भेजा है. गॉड ने तो 100 पेसो ही भेजा था बट उसमें से उसके पास सिर्फ 70 पेसोज ही आए और बाकी का जो सारा मनी था वो जो एम्प्लॉयज थे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे, उन्होंने चुरा लिया. सो दिस वाज आवर चैप्टर लेटर टू गॉड. एंड क्या सीखते हैं हम इससे? दैट पीपल डू नॉट ट्रस्ट अदर पीपल. ह्यूमंस ही ह्यूमंस को ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज द पोस्ट मास्टर ही टुक ऑल दीज एफर्ट्स. उसने इतना एफर्ट किया, उसने इतनी परेशानी उठाई लेंचो की परेशानी दूर करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, बट इन रिटर्न उसी को उसने बुरा बता दिया. लाइक द आयरनी इन द सिचुएशन, लेंचो ने ही पोस्ट मास्टर को ही बुरा बता दिया जिसने इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए उसके लिए, जितने इतने ज़्यादा उसको हेल्प करने के लिए अपनी भी सैलरी दी, लोगों से भी मांगा एंड अल्टीमेटली उसे ही बुरा मिल गया. Okay, so this was our chapter. I hope you understood it. Very easy, very nice chapter and thank you.